Assalamu alaikum. Exercise 5.1, question number 1. And these two parts I'm going to do, and these two parts you have to attempt. Let's solve this. Firstly, I'm going to solve x union y. And x union y means, firstly I wrote x, so it means I have to take the value of x first. So 1, 4, 7, 9 is the value of x. After that union, so we have to bring in the center union. The value of y is 2, 4, 5, 9. X union y means what? We have to write all these values, the value of x and value of y, in a sequence. So 1 I'll choose from here. I'll see 2 is in this set. So 1, 2, 4, 5, 7 and 9 is your answer of x union y. Jumping towards the next question, which is x intersection y. X intersection y means the value of x, again I'll write 1, 4, 7, 9, and after that in center I am having intersection. So I'm going to write intersection. After that the value of y, 2, 4, 5 and 9, right? Intersection means we have to write only those values which are same in both sets. The value which are same in both sets are 4 and 9. You can see in both sets. So 4 and 9 is your answer. Now your work starts. You have to find out the answer of these next two parts. Come on, start working. Thank you so much. Here we go. Exercise 5.1, question number 2. It is same like as question number 1, but he gave us the values in words x and y. So x is equals to set of prime numbers less than or equals to 17. It means words. We have to take the value of x first. So x is equals to prime numbers less than or equals to 17. We know that our prime number starts from 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. After that the value of y means what? The value of y means a set of first 12 natural numbers. So let me take first 12 natural numbers. Natural numbers हमारे क्या होते हैं? जो 1 to 3 up to 12 means, so I will write 12. Okay, the next thing is that we have to find x union y. चलिए जी हम x union y find करते हैं. X union y means what? We have to write the first value of x, which is 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. After that union means we have to take the value of y, which is 1, 2, 3, 4, 5 up to 12. अब मुझे बताएं कि यूनियन का मतलब क्या होता है. मेरा बेटा यूनियन का मतलब होता है we have to take all these values together in one set, but we have to start from 1, or 1 means we have to start from lowest value, because union means we have to write all these values in a sequence, and sequence should be in ascending order. So let's start from 1, 1, 2, 3. All these values will go till 12 in continuity, and after that from this set you can see these values are little bit more. So 13 and 17. So this is the answer, x union y. We have to find next 3 different parts of y union x, x intersection y and y intersection y. This is your work. Come on, start working on these 3 parts, and in comments you have to answer. Thank you so much. Okay, we have the next question, exercise 5.1, again the same exercise, and the question number 3. In this he gave us actually the values in again different ways. So x is equals to 5. 5 means what? X is 5. 5 को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, and 5 means no element in a set. Y is equals to z plus. z plus हमारी वो values होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, और ये स्टार्ट होती हैं 0 से. 0 plus 1 plus 2 plus 3, and he didn't limited it, so we have to write it unlimited values. T is equals to O positive. O positive हमारा क्या होता है? All values, all odd values but positive. तो ये +1, +3, +5 and up to so on हमारी values clear होगी.
अगले ये सारे पार्ट्स बेटे 6 different part he gave us in the first question and second question. I have very clearly explained x union y, x intersection and all those, but in this question I'm going to solve the last part and that all you have to attempt yourself. Here we go. Y intersection t. Y intersection t. It means the value of y is this: 0 plus 1 plus 2 plus 3 and up to so on. After that I have intersection, the value of y which is this, value of t which is this, so plus 1 plus 3 and plus 5. इसको थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं. इंटरसेक्शन मीन्स ऑल दोज वैल्यूज विच आर सेम. अगर हम इनमें देखते हैं तो हमारे पास प्लस 1 सेम है, then plus 3 would be same and plus 5 would also be same. So it means the answer would be all these odd numbers. So plus 1 plus 3 and plus 5. आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे. दैट वुड बी योर आंसर. बेटे अपना काम शुरू करें. इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट करके मुझे कमेंट्स में इनके आंसर शो करवाएं और फिर इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं. थैंक यू. ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. और इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं सॉल्व करने के लिए. अगर हम 4 डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, इन सब की वैल्यूज़ u, x एंड y की. अगर हम सिर्फ u को देखते हैं बेटे तो इसको ज़रा पढ़ने का तरीका देख लें. इसको हमने पढ़ना कैसे है. u इज इक्वल्स टू x whenever x belongs to n. मतलब ये जो सेट होगा वो नेचुरल सेट का होगा. एंड 3 लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू 25. लेस देन और इक्वल्स टू 25 मीन्स ये जो 25 है ये इंक्लूड होगा और 3 इंक्लूड नहीं होगा. हम नेचुरल नंबर्स लेंगे द वैल्यू ऑफ u के अंदर, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 4, 5, 6 टिल 25. उसके बाद बेटे ये x को अगर हम फोकस करते हैं तो इस x में हमारे पास क्या गिवन है, x whenever x is a prime number and 8 less than x less than 25. अब आप दोनों में देखिएगा ज़रा, दोनों में लेस देन खाली दिया हुआ है, इसमें कोई इक्वल साइन नहीं है. तो अगर इक्वल साइन नहीं है इट मीन्स के 8 and 25 both are not included. So we have to see the values, we have to check the prime numbers जो 8 और 25 के दरमियान में आती होंगी. हम 8 के बाद 11, 13, 17, 19 एंड 23 ये हमारे पास x की वैल्यू बन गई. अब हम जंप करते हैं वैल्यू ऑफ y की तरफ. वैल्यू ऑफ y में देखिए ये कह रहा है होल सेट है और होल सेट में भी हमारी कंटिन्यूटी होती है जैसे नेचुरल में होती है. तो हम लोग वो सारे नंबर्स लिखेंगे 4 से लेके 17 तक और 4 और 17 दोनों को इंक्लूड करेंगे. राइट, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि अगर नीचे ये इक्वल साइन आया हुआ है तो हम इनको दरमियान में इन्वॉल्व करते हुए जाएंगे. तो हमारे पास वैल्यूज क्या बन गई है 4, 5, 6 अप टू 17. ओके, अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं u, x एंड y. तो हम सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है अगर, तो पहले बेटे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट के अंदर की चीज़ हमारी क्या है, x यूनियन y. x यूनियन y मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 4, 5, 6, 25 union and the value of y is this one which is 4, 5, 6 the value actually the value of x is different which is this one 11, 13, 17, 19. 11, 13, 17, 19 and 23. अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी है y की. तो y की वैल्यू जो है वो हमारी 4, 5, 6 अप टू 17. अब यूनियन हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका हुआ है.
कि यूनियन का मतलब होता है हमने ये सारी वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखना है, बट इन असेंडिंग ऑर्डर्स। अगर कोई वैल्यू ट्वाइस आती है या तो फिर उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। So I'm starting from 4, 5, 6 till 17 all values will come, क्योंकि ये 17 तक है। उसके बाद 19 and 23 ये वैल्यूज एक्स्ट्रा हैं तो हम इनको भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास x यूनियन y क्लियर हो गया, बट वी हैड टू फाइंड x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। तो बेटे इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उस चीज़ को हम u से माइनस कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। हियर वी गो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस x यूनियन y। इट मीन्स के पहले मैं u की वैल्यू लिखूंगा। u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4, 5, 6 till 25। 4, 5, 6 till 25 माइनस x यूनियन y हमने ये फाइंड की है, 4, 5, 6 अप टू 17 एंड 19 एंड 23। ओके, अब हमने माइनस करना है, तो माइनस करने का मतलब क्या होता है बेटे, जो वैल्यूज सेम है उनको हम कट कर देंगे। अगर हम देखते हैं 4 से लेके 17 तक तो सेम होगी, तो मतलब 17 तक कट गई। उसके बाद रह गया 18, बट 19 देखें सेम हो गया, उसको कट कर देंगे। 20, 21, 22, 23 सेम होगा, 24 एंड 25। ये हमारे पास लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई है, x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा पहला पार्ट एक्चुअली कंप्लीट हो गया x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट का। मैं इसका एक और पार्ट भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये साथ ही आपका क्लियर हो जाएगा, तो बाकी दोनों आपने खुद से करने हैं, वो आपका होमवर्क होगा। सेकेंड पार्ट इज x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। इसको सिंपल मैं तो हल्का सा सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग ना इसको हिंट देख लें। इसको सॉल्व आपने खुद से करना है। x इंटरसेक्शन y, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। मेरा बेटा पहले हम क्या करेंगे, x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि हमने u माइनस एक्स, मीन टू से जिसके ऊपर एक बार होगी उस चीज़ को हम u से माइनस कर देंगे। ये आपका x कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला रेडी। और दूसरी चीज़ हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, y कॉम्प्लीमेंट। तो इट मीन्स हम इसको u माइनस y कर देंगे। ये आपको y कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला रेडी। नाउ यू गॉट दीज टू वैल्यूज, पहली वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट y कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन का बेटे मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज हमारी इससे सेम आई है, इसमें और इसमें दोनों में जो वैल्यूज सेम होंगी वो आप इसके अंदर लिख देंगे, तो ये आपका एक्चुअली आंसर होगा। सो दैट इज द एक्सरसाइज नंबर 5.1 वी हैड डन टुडे। सो आप इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे तरीके से प्लीज देख लीजिएगा, बिकॉज जिसको 5.1 कंप्लीट आती है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी अटैम्प्ट हो सकते हैं, और 5.2 और 5.3 से जो लॉन्ग आना है वो एक्चुअली बेस करता है 5.1 पे। अगर आपकी 5.1 अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी तो 5.2 और 3 करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो प्लीज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 5.2 और 3 में इंशाल्लाह वेरी सून अपलोड कर दूंगा। आप पहले 5.1 कंप्लीट करके मुझे डन का एक कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।